This is Tupa from Angel Paradise English Medium School. Today I will explain chapter number 5, data handling. So I will divide the chapter into two parts. In first part we will see introduction about data handling. Try this and exercise 5.1. In these chapters we will detail studied some graphs, for example, bar graph, double bar graph, pie chart and histogram, etc. All these are studied in the chapter. Student, today's topic is chapter number 5, data handling. Students, in previous class in standard 7, I will explain graphs in chapter number 3, same data handling. So in this chapter I will explain graph and double bar graph. Now in this chapter in standard 8 we will see some more types of graphs. For example, pictograph, pie chart and histogram also. So these are the types of graphs. First one is bar graph. So in previous class I have explained bar graph and double bar graphs. So how to draw a graph, and in x-axis what should be right and in y-axis what should be right. And next one is histogram. It's a new for in these chapters we will study histogram. Next one is pictographs. In previous standard I already explained the pictographs. So in pictographs the images should be used. Then next one is pie charts. Pie charts also we have learned in this chapter. So these are the types of graphs. First now I will explain pictographs. So before we start a graphs, first I have explained what is the meaning of data. डेटा मीन्स क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नेम ही डेटा हैंडलिंग है. सो डेटा किसे कहते हैं, क्यों डेटा वर्ड यूज हो रहा है, सो अभी हम वो देखेंगे. So some introductions about data. In daily life, you might have come across information such as. So in our daily life, lots of informations have come across. Runs made by a batsman in the last 10 test matches. For example, we will watch a cricket match in TV. So in that match, some runs made by batsman in last 10 matches. So टीवी में हम लोग क्रिकेट में देख सकते हैं कि वो बैट्समैन का रन कितना है लास्ट 10 मैचेस में. सो उनका डेटास देखेंगे, मतलब उनका इंफॉर्मेशन मीन्स डेटास देखेंगे. सो उनके लास्ट 10 मैच में उनका कितना रन्स हुआ है. नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन द लास्ट 10 ODIs. जिस तरह भी यहाँ पे एक बैट्समैन का टेस्ट मैच का रन देख रहे हैं, सेम टू सेम विकेट्स एक बैट्समैन का कि लास्ट 10 ODIs में उनका कितना विकेट्स है. So the information is called a data. Marks scored by the student of your class in the mathematics unit test. So next example is in unit test, marks stored by the students in classes. Number of storybooks read by each of your friends, etc. So next example is how many number of storybooks have read by your friends. So these are called the informations. The informations collected in all such cases is called a data. So whatever informations are collected in our daily life, it's called a data. Data is usually collected in the context of a situation that we want to study. So data is collected normally as to in that situations we want to the study of the data. For example, a teacher may like to know the average height of students in a class. So one more example, a teacher wants to know that average height of students in her class. To find this, she will write the heights of all the students in her class. So to find out the average height of students in her class,
First, we will write heights of all the students in the class. Organize the data in a systematic manner and then interpret it accordingly. After that, we will arrange the students with the heights and find out the average height of the students. Sometimes data is represented graphically to give a clear idea of what it represents. So in sometimes data is represented graphical method. For example, um, a businessman should know the profit or loss of a company. So they can find out the graphs. So अगर एक बिजनेसमैन को उनके कंपनी में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ये फाइंड आउट करना है, सो ग्राफिकल मेथड के थ्रू वो फाइंड आउट करते हैं. सो ईयर और उनके प्रॉफिट और लॉसेस कितना अगर वो रख के फाइंड आउट करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको समझ में आ जाएगा कि उनके कंपनी लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है. नेक्स्ट वन इज शेयर मार्केट्स. सो इन दिस वे ग्राफिकल मेथड्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. So first we will see a pictogram. Pictorial representation of data using symbols. One is equal to 100 car. One symbol stand for 100 cars. एक कार का सिंबल स्टैंड हो रहा है 100 कार्स का. So first 1 means 100. 100 plus 100 इसमें सिर्फ हाफ है. So half means 50. So 100 plus 100, 200 plus 50 is equal to 250. Next one is 3. तीनों के 3 बार फुल है, मतलब कोई भी इसमें हाफ नहीं है. So इसमें 300 काउंटिंग में होगा. नेक्स्ट सितंबर में 4 का ही फुल इमेजेस का है. So यहाँ पे आंसर आएगा 400. So in this way we can find a pictograph in a graphical method. Pictograph is very easy method. First question, how many cards were produced in the month of July? So in the July, how many cards are produced? So 250 cards are produced in the month of July. In which month were maximum number of cards produced? So here 3 months are there. In 3 months, which month can make a maximum number of cards produced? So the answer is September. September month where maximum number of cars produced, and the answer is 400. Next is bar graph. So in bar graph, the distance between all the graphs are equal. अभी इसको डिस्टेंस देख सकते हैं तो ग्राफ इक्वल होगा. बार्स आर ऑफ इक्वल विथ इक्वल गैप्स इन बिटवीन. गैप्स उनका सबका बार ग्राफ में इक्वल होता है. सो यहाँ पे बार ग्राफ दिया है. सो स्टूडेंट्स अभी इसको देख के हम प्रॉपर मेजर्स कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या करना है आपको ग्राफ के बुक पे ड्रॉ करके आंसर्स लिखना है. सो वाई एक्सिस में दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 एंड एक्स एक्सिस में दिया है एकेडमिक ईयर्स. सो ये इतने 2003-4 में 100 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. 2004-5 में 200, 2005-6 में 250, 2006-7 में 300, देन 7-8 में 350. ये इंफॉर्मेशन स्टार ग्राफ का है. सो विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन यू कैन राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. What is the information given by the bar graph? So bar graph में क्या क्या information दिया हुआ है? Simple. Number of students in class 8 and the academic years of the informations given by the bar graph. X axis and Y axis में जो भी informations दिया है वही आपको information के through answer में transfer करना है. Next question. In which year is the increase in the number of students maximum? which year में number of maximum students increased हुआ है?
सो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना है. इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम. अभी ये ग्राफ में हर साल स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं. फर्स्ट 2003 एंड 4 में 100 था, देन 4 एंड 5 में 200 हो गए, 5 एंड 6 में 250, 6 एंड 7 में 300, 7 और 8 में 350. एज कंपेयर टू ऑल द ग्राफ्स 2004-5 is the increase the number of students is maximum because 4 3 and 4 में 100 था, then automatic 4 and 5 में 200 हो गए. It means बीच पे 150 ज़्यादा हो गए. तो बट 4 and 5 और 5 and 6 के बीच में देखेंगे तो सिर्फ 50 ही ज़्यादा हुआ है. सो इसके बाद सारे और ईयर्स में सिर्फ 50 ज़्यादा हो रहा है, बट यहाँ पे ही 100 था और अचानक से 200 हो गए. तो बीच में जो इंक्रीज ज़्यादा हुआ है वो है आपका 2004 एंड 5 का. नेक्स्ट, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम. अभी थर्ड का आंसर, इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मैक्सिमम. इन 2007 and 8 the number of student is maximum. Next, state whether true or false. The number of students during 2005-6 is twice that of 2003-4. So its the answer is false because the number of students during 2005-6 is not twice that of 2003-4 but more than twice. So 3 and 4 में यहाँ पे 100 है, but 5 and 6 में यहाँ पे 250. So 100 का ट्वाइस आएगा आपका 250, बट यहाँ पे 250 से ज़्यादा है. सो इसलिए आंसर इज फॉल्स. Next one is double bar graph. A bar graph showing two sets of data simultaneously, it is useful for the comparison of the data. So double graph is useful for the comparison of the data. Data ईयर को रख के कंपेयर कर सकते हैं डबल बार ग्राफ में कौन से ईयर में ज़्यादा हुआ है. सो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स y-axis, in x-axis subject other, maths, social science, science, English, हिंदी. सो स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ पे 2 ईयर्स कंपेयर किया हुआ है. जो वाइट है वो 2005-6 है, और जो ब्लैक है वो 2006 एंड 7 जो ग्रे कलर का है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ. सो आपको सिर्फ इतना लिखना है, नंबर ऑफ marks obtained by a student and the subject are the information given by the double bar graph. Second question, in which subject has the performance improved the most. So ये डेटा रख के देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस जो है बच्चों का ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है. सो फर्स्ट मैथ्स में देख सकते हैं 30 इन 2005-6 एंड 6-7 में 60 है. नेक्स्ट सोशल साइंस में 5 में 50 है, देन 6 में 60, देन साइंस बिटवीन एंड इंग्लिश एंड हिंदी. सो एज सी टू द ऑल द सब्जेक्ट मैथ्स, इन द सब्जेक्ट मैथ्स द परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड द मोस्ट. मैथ्स में उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस ज़्यादा हुआ है. इन विच सब्जेक्ट एज द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड. डिटेरियोरेटेड मीन्स परफॉर्मेंस इज लोवेस्ट. सो जो कम मतलब प्रीवियस ईयर से ये साल में मार्क्स ऑटोमेटिक कम हो गए. सो 2005 एंड 6 और 6 एंड 7 में मार्क्स कम हुआ है, वो है इंग्लिश में. सो आंसर इज इंग्लिश. इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार. दोनों कॉमन है, वो है हिंदी में. सो आंसर इज हिंदी.
स्टूडेंट्स, ये चैप्टर्स के लिए आपको एक अलग सा ग्राफ बुक लेना है। आप स्टेशन में जाके पूछेंगे वहाँ पे तो आपको ग्राफ बुक मिल जाएगा। सो मैं अभी उस ग्राफ बुक का फ्रंट पेज आपको वीडियो में दे रही अपलोड कर रही हूँ। ऐसे ही आपको जाके दुकान में पूछना, स्टेशन में जाके पूछना है। यही ग्राफ बुक का फ्रंट पेज है, आर्चिड मैथमेटिक्स बुक्स इन स्टैंडर्ड 8। सो आप एक स्टेशन में जाके पूछेंगे तो आपको दे देंगे। यही ग्राफ बुक में आपको एक चैप्टर के ट्राई दिस एंड एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स सारे करने हैं। क्वेश्चंस भी ग्राफ बुक में है, से आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है या आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है ग्राफ को देके। सो नोटबुक में स्टूडेंट प्लीज़ आप ये चैप्टर्स नोटबुक में नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ बुक में ही अटेंड करना है। सो ये फ्रंट पेज का है आपका, और इसमें ट्राई दिस का और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी है और ग्राफ बुक का पेज नंबर भी है, और ये कई इंडेक्स कॉन्टेस्ट का है। सो ऐसे ग्राफ बुक आप स्टेशन में जाके जो चैप्टर्स में अभी जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको इसमें ही अटेंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इन ट्राइदिस, आपको सारे ट्राइदिस भी अटेंड करना है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी लिखना है। सो फर्स्ट, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशंस। ऐसे क्वेश्चंस आपके ग्राफ बुक में दिया हुआ है, वो देख के आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, सो मंथली वाइज कितने वॉचेस सोल्ड हुए हैं। जुलाई में 1000, अगस्त में 1500, सितंबर में 1500, अक्टूबर 2000, नवंबर 2500, देन दिसंबर 1500। सो आपको इसमें स्केल कैसा लेना है वही आपका सुटेबल है। तो स्केल आपको प्रॉपरली लेना है और स्केल लिखना भी कंपलसरी है। तो स्केल में आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, कितना आपको एक एक बॉक्स का डिफरेंट लेना है वो देखना है आपको। सो आपको 10 तो इसमें पॉसिबल नहीं है, सो 100 ले सकते हैं या 500। सो वी विल स्टार्ट विथ द 500 से स्टार्ट करते हैं। 500, 1000, 1500, 2000, 2500। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 वॉचेस। सो ये है आपका स्केल का इंफॉर्मेशन। सो ऐसा होगा ग्राफ का पेज। अगर आपके ग्राफ बुक में वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है तो कोई बात नहीं, अगर ड्रॉ नहीं किया है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाई एक्सिस ड्रॉ करना है और नेक्स्ट नीचे से एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है और यहाँ पे 0 लिखना है, और यहाँ पे आप लिखेंगे स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 वॉचेस। और एक्स एक्सिस में आपको लिखना है मंथ्स और वाई एक्सिस में आपको लिखना है नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, और आपको स्टार्ट करना है 500 यहाँ से। सो 500 फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट में 1000, नेक्स्ट में 1500, 2000, 2500। अगर आपको एक एक बॉक्स छोड़ छोड़ के नंबर्स लिखना है तो भी आप कर सकते हैं। सो फर्स्ट में 500 लिखना है, एक बॉक्स छोड़ के सेकेंड में 1000 लिखना है आपको। यहाँ पे आपको ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे उसके ऊपर लिखना है। सो एक बॉक्स छोड़ के ऊपर भी आप 1000 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक बॉक्स छोड़ के 1500, नेक्स्ट 2000, नेक्स्ट 2500। इस तरह आपको नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड वाई एक्सिस में लिखना है।
नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे 500 रखते हैं तो एक बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट 1000 में रखेंगे। सो नेक्स्ट 500 के बाद आएगा आपको 100 वाइज काउंट कर सकते हैं या 200 वाइज काउंट करेंगे। सो फर्स्ट 500 और दो लाइन गिना के 600 होगा, दो लाइन गिना के 700, टू लाइन्स काउंट करके 800, टू लाइन्स काउंट करके 900, बाद में 1000। अगर आप बॉक्स नहीं छोड़ते हैं तो वन बॉक्स 100 गिनाएगा। अगर आप बॉक्स छोड़ते हैं, एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में लिखते हैं तो टू लाइन्स ज्वाइन करके आपको 100 काउंटिंग में आएगा। इस तरह आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रन हु प्रेफर स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। सो ये आपका डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है क्योंकि यहाँ पे 2 डेटा है, एक वॉकिंग का भी एक साइकिलिंग का भी है, स्कूल ए, बी एंड सी। सो एक्स एक्सिस में आपको आएगा स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी। चिल्ड्रन हु प्रेफर। नेक्स्ट वाई एक्सिस में आएगा आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन। So this is the graph of example in try this question number 2. First you can write 1 centimeter is equal to how many children. So in this questions we will take a 5 children, difference 5 ले रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, जिस तरह आप 60 तक यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद स्कूल है, स्कूल बी, स्कूल सी। सो फर्स्ट यहाँ पे डबल बार ग्राफ है, इसके लिए आप एक को ब्लैंक छोड़ते हैं और दूसरे में आप ड्राइंग कोई भी लाइन या डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने लिया है वॉकिंग में डिज़ाइन लिया है और साइकिलिंग में ब्लैंक छोड़ दिया। सो फर्स्ट स्कूल ए का हम देखेंगे, वॉकिंग में 40 है, साइकिलिंग में 45। तो स्टार्ट करना है आपको। सो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप कैसे नंबर्स लिखा हुआ है, बिटवीन में ऐसे ही आपको भी लिखना है। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ ग्राफ इन वॉकिंग। 40 तक आपको लाइन ड्रॉ करना है, उसके अंदर आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा 45। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक बॉक्स छोड़ के इन्होंने स्कूल भी लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको करना है। फर्स्ट 55, सेकेंड 25। थर्ड वन इज स्कूल सी, वॉकिंग आपका 15 और साइकिलिंग आपका 35। इस तरह ड्रॉ करना है डबल बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, परसेंटेज विन्स इन ODI बाय 8 टॉप क्रिकेटर्स टीम में। सो इसमें भी आपको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और यहाँ पे टीम्स का नेम लिखा हुआ है। सो टीम्स नेम आर राइट इन एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप लास्ट 10 ODI इज 7। सो ये आपको काउंट लिखना है वाई एक्सिस में, परसेंटेज इन ODI। सो आपको इसमें डायरेक्ट परसेंटेज लिखना है 70। इसे अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करते हैं 75, 61, 54 ऐसे रखना है, परसेंटेज काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यू कैन पुट अ 10 और 5%। सो आप डिफरेंस 10 भी रख सकते हैं या 5 भी रख सकते हैं। So in graph book you can write draw a graph. Next, organizing data. Usually data available to us is in an unorganized form called raw data. To draw meaningful inferences, we need to organize the data systematically. So in raw data, a collection of observations gathered initially. So to collect the information and arrange the information initially is called raw data. For example, a group of students was asked for their favorite subject. The result were as listed below. So for example, a certain group of students was asked for their favorite subject. So art, mathematics, science, English, mathematics, art. So this is called the raw data because it's not arranged. Who can like the most favorite subject? So it's not a proper order.
So in that way we can arrange the data. So with the help of these informations, we cannot take a proper decisions who can like the most, like the subject at most and least, so that we can make a tally marks. First we can see that how many subjects are there in the data. Art, mathematics, science, English. Only 4 subjects are there. So first we can write subject art, mathematics, science, English. Next tally marks, number of students. So these types of questions I have also explained in the previous classes tabular form. Same you can follow here also. Suppose the art students are 7, we can draw a first 4 line. After that in fifth we can make a 1 cross line. So it's called a 5 lines. And next one is 2, total 7. सो आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए टैबुलर फॉर्म कैसे करना है. इसी तरह आपको ये टैबुलर फॉर्म करके आपको आंसर्स लिखना है. वो लाइक द मोस्ट सब्जेक्ट एंड लीस्ट सब्जेक्ट. सो दिस इज नॉन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सब्जेक्ट. The table made is known as frequency distribution table. This table is known as frequency distribution table because with the help of this table we can make a proper decisions who's liked the most subject and least subject. The most liked subject is art and the least one is English. Next, try this. In this, try this also in your graph book. A group of students were asked to say which animal they would like most to have as a pet. So some group of students have asked to say who has liked to most a pet animals. So yes, some pet animals names are there: dog, cat, fish, rabbit, cow. So with the help of this data we can make a frequency distribution table. So जिस तरह मैंने 5.1 आपको एक्सप्लेनेशन किया है उसी तरह आपको लिखना है pet animal, tally marks, number of students. Then last you can write a total. Next one is grouping data. The data recording choice of subject showed the occurrence of each of the entries several times. For example, art is liked by 7 students, mathematics is liked by 5 students and so on. Table 5.1. So अभी हमने टेबल 5.1 में कुछ इन्फॉर्मेशन देखे थे. आर्ट स्टूडेंट 7 students and mathematics like 5 students etc. So these informations can be displayed graphically using a pictograph or a bar graph. So with the help of these informations we can draw a pictograph or bar graph because the informations are small. Sometimes we have to deal with the large data, but in some time we have to given a large type of data. For example, consider the following marks out of 50 obtained in mathematics by 60 students of class 8. So yes, some informations are there. In class 8 students, out of 50 marks, 62 students will attain the mathematics test in 50 marks. So with the help of this data, we can make a frequency distribution table. So first in this data, we can write a lowest observation and the highest observation and class interval. So in this way, you can write the informations. First, you can write lowest observation. So and second one is highest observation and last class interval. वो जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो रख के आपको लोवेस्ट, हाईएस्ट एंड क्लास लिखना है. सो वो इंफॉर्मेशंस में सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है 5 एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 50. सो हम इसका क्लास इंटरवल्स
लिखना है 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30। इस तरह क्लास इंटरवल फॉर्म करना है। हम 0 से 5 तक भी कर सकते हैं, बट 0 से 5 तक करेंगे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, लंबा होगा टेबल। तो इससे शॉर्ट करने के लिए हम 0 से लेकर 10 तक ले सकते हैं। जितना शॉर्ट करेंगे उतना शॉर्ट करके लिखेंगे तो ईजी होगा। तो ग्रुप्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। ग्रुप्स स्टार्ट किया हमने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। सो नेक्स्ट अभी देखना है 0 और 10 के बीच में कौन से कितने नंबर्स हैं। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 by 1 नंबर्स देके उसके कौन से नंबर के बिटवीन में आएंगे वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो फर्स्ट 21 है, सो 21 आपको 20 और 30 के बिटवीन में आएंगे, सो 21 यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 10 आया हुआ है, सो 10 आते टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। सो ये जो है 0 से लेके 10 तक, 0 to 10 के बिटवीन में जो नंबर है वो आपको लिखना है। सो नेक्स्ट 10 से लेके 20 तक जो नंबर्स बिटवीन में यहाँ पे लिखना है। तो स्टार्टिंग 10 और एंडिंग 20, सो 10 का भी लाइन ड्रॉ करना है आपको यहाँ पे। सो कभी कभी कंफ्यूज इसमें हो रहा है, अगर यहाँ पे हम जो नंबर्स ग्रुप्स में इन क्लास इंटरवल ले रहे हैं वही नंबर आपको क्वेश्चन में आ रहा है, तो क्या करना है, फर्स्ट जो भी क्लास इंटरवल है उसको 0.5 से, जो फर्स्ट जो है वो लोअर क्लास है एंड सेकेंड जो है वो अपर क्लास, मतलब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके लिख सकते हैं। स्टार्टिंग जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, सो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसको 0.5 से माइनस करना है। और नेक्स्ट आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो है आपको 0.5 से प्लस करना है। सो अभी हम इसको 0.5 से प्लस करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। सो 10.5 तो 10 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 का लाइन ड्रॉ नहीं करना है। नेक्स्ट इसमें हमको जो लेफ्ट हैंड साइड लोअर है उसको 0.5 माइनस करना है और जो 20 जो है वो 10.5 प्लस करना है। 0.5 माइनस 0.5 प्लस करना है। अगर हमने यहाँ पे 0.5 माइनस कर दिए तो 9.5 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस करेंगे तो 20.5 हो जाएगा। सो अभी 10 तो इन दोनों के बिटवीन में आएंगे, सो लाइन भी आपको यहीं पे ही ड्रॉ करना है। सो आप ये पता आप याद रखें जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0.5 माइनस करना है और जो राइट हैंड साइड का है वो 0.5 प्लस करना है। देन लास्ट में आपको टोटल आएगा 60। So data presented in this manner is said to be grouped and the distribution obtained is called the group frequency distribution. So this data is called the group frequency distributions. So you can try this in graph book. So here class intervals are also here, class interval and frequency. So with the help of this you can make a frequency distribution table. अगर आपको ग्राफ बुक में ये क्वेश्चंस है तो ऑलरेडी लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा तो ये टेबल लिख के आपको जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आपको लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज क्या है। सो आपको लिखना है क्लास साइज इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट।
So what is the size of the class interval? So class size is equal to upper class limit minus lower class limit. Upper class limit is जब क्लास इंटरवल साइज ऑफ द क्लास इंटरवल पूछ रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है वही आपको लेना है. अपर मीन्स राइट हैंड साइड एंड लोअर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. So upper 125 minus under is equal to 25. So 25 is the difference between of all class interval. Second, which class has the highest frequency? So आपको frequency में जो है उसमें देखना है कि highest number कौन सा है. So उनके सामने जो class है वही आपका highest frequency है. So the class 225 is having the highest frequency, which is 140. Next question number 3. Which class is the lowest frequency? So table में सबसे lowest number कौन सा है उसके सामने जो class है उसका class यहाँ पे लिखना है. The class 325 as the lowest frequency, which is 20. What is the upper limit of the class interval? 250, 275. So upper limit of the class interval 250, 275 is 275. So again मैं रिपीट कर रही हूँ. अपर मीन्स राइट हैंड साइड, लोअर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. अगर ऐसा आप याद रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वरना आप अपर लोअर में बहुत कंफ्यूज होंगे. अपर मीन्स राइट एंड लोअर मीन्स लेफ्ट. Which two classes have the same frequency? So ये टेबल में कौन से दो क्लासेस है उसका फ्रीक्वेंसी सेम है. So the classes 170, 150, 175 and 225, 250 are having the same frequency, which is 55. Next, question number 2. Construct a frequency distribution table for the data on weights in kg of 20 students of a class using interval 30, 35, 35, 40 and so on. So यहाँ पे already class interval start कर दिए 30, 35, 35, 40. So आपको इसके start करने के पहले जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाए थे, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वो लिखना है. सो इसमें आपको लोवेस्ट लिखना है क्या है और हाईएस्ट लिखना है. देन आफ्टर दैट यू कैन राइट अ क्लास इंटरवल एंड मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आपको टैली मार्क्स रेडी करना है, ये इंफॉर्मेशन रखें. अभी तक हमने देखा है बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ. अभी जो हम देखने वाले वो है हिस्टोग्राम. सो हिस्टोग्राम भी वन टाइप ऑफ ग्राफ ही है. सो this is the this graph figure 5.1 graph is known as histogram. In this way histogram graphs are made. So in histogram class interval are there. So now I will explain one histograph in graph book. एग्जाम्पल. सो ये जो मैं अभी क्वेश्चन जो है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी का, अभी मैं इसको एक ग्राफ बुक में ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसे आपको ड्रॉ करना है. सो इन ऑलरेडी यहाँ पे वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है. अभी हमको क्लास इंटरवल देख के और फ्रीक्वेंसी देख के अभी आपको ड्रॉ करना है. सो क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है आपका 0 से लेके 10 तक. सो यहाँ पे आपको लिखना है जो फर्स्ट ये वाला है ना बॉक्स, इसमें आपको 10 से शुरू करना है. नेक्स्ट आएगा 20, नेक्स्ट 30, 40, 50, 60. इस तरह हिस्टोग्राम में विदाउट गैप यू कैन राइट अ नंबर. सो गैप के बिना आपको यहाँ पे नंबर लिखना है.
एक बॉक्स छोड़ के नहीं लिखना है। जो बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में जो एक बॉक्स छोड़ के लिखते हैं, तो हिस्टोग्राम में आपको वैसा नहीं लिखना है, कंटिन्यूस लिख के जाना है। नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ पे स्केल ले सकते हैं डिफरेंस टू डिफरेंस ले सकते हैं। 2 सो इस तरह मैंने टू डिफरेंस ले लिए 2 से लेके 20 तक। सो अभी हम कर सकते हैं कि फर्स्ट हमको देखना है 0 से लेके 10 तक कितना है, वो हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखना है। 0 to 10 टू फ्रीक्वेंसी 2 है और 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 10। सो 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 2 है, तो क्या करना है, अभी आपको स्केल ले लेना है, 2 से यहाँ तक खींचना है। बस ऐसा लाइन खींच के स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट 10 to 20 हमने देखा है फ्रीक्वेंसी 10 है, सो क्या करना है 10 to 20। सो 10 से ऊपर ही यहाँ पे जाके एक पॉइंट रखना है, पॉइंट रख के एक लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन ड्रॉ करके, और 10 to 20 है, सो 20 को भी फिनिश करना है। बस इसी तरह करना है। नेक्स्ट 20 to 30 हमने फ्रीक्वेंसी देखा है 21, सो इट मीन्स 20 और 22 के बीच में आएंगे। सो 21 हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी रख सकते हैं। सो हमने 21 के लिए पॉइंट यहाँ पे रख दी। सो एक लाइन ड्रॉ करना है। अभी अगेन आपको एक लाइन ऐसा लंबा सा लाइन ड्रॉ करना है। सो ये हो गया 20 to 30 का। सो नेक्स्ट आएगा आपको 30 to 40। 30 to 40 19, 40 to 57, 50 to 61। अभी ये 3 फ्रीक्वेंसी हम ग्राफ में पॉइंट करेंगे। सो अभी 30 to 40 हम रखेंगे 19। सो 19 भी आपको करना है 18 और 20 के बीच में अप्रोक्सीमेटली। ये हो गया आपका 30 to 40 19। देन 40 to 50 रखना है आपको 7। सो 7 आपको रखना है 6 और 8 के बीच में। सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बिटवीन में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट रखना है 50 और 60 का 1। सो 1 आएगा 0 एंड 2 के बिटवीन में। सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप 1 ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस तरह आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ये हुआ आपका हिस्टोग्राम। सो इसके ऊपर आपको लिखना है कौन से मेजर है। ये आपका 2, 10, 21, 19, 7 और लास्ट 1, ये इंफॉर्मेशन आपको लिखना है। सो दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। So at last you can write here class interval, then and y-axis frequency,
scale. 1 centimeter is equal to 2 students. So in this way you can draw a histogram. So this is called a histogram. Class interval, then frequency, and write scale. Next, now we will see some triads about histogram. Observe the histogram figure 5.3 and answer the questions given below. So this is the graph of histogram. With the help of this graph, you can write the answers in all the questions. So in a y-axis, number of girls of class 7th, and in x-axis, heights in centimeter. What information is being given by the histogram? So what are the informations are given by the histogram? So the histogram represents, so इसमें से आपको क्या informations मिल रहा है? So histogram में ये informations मिल रहा है height of girls. So girls, heights of girls of class 8 का information दिया हुआ है. So answer is the histogram represents the heights of girls of class 7th. Next, second number, question number 2. Which group contains maximum girls? यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें से मैक्सिमम कौन सा है? So maximum is 140 to 147. 7 girls है. So answer is 140 to 145 contains maximum number of girls. Next, question number 3. How many girls have a height of 145 centimeters and more? So कितने गर्ल्स है 145 and उससे ज़्यादा? So 145 और उससे ज़्यादा. 145 to 50 शुरू हो रहा है 4 2 1. So यहाँ पे ये पूछा हुआ है. So इसका क्लास इंटरवल ऐसा है 0 to 125, 125 to 130, 130 to 135, 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, then last one is 155 to 160. So ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है 145 और मोर देन 145 कितना है? So 145 आपका शुरू होगा 4 और more than means 4 to 1. Answer is 7. So 7 girls have the height of 145 centimeter and more. So question number 4 करने की जरूरत नहीं है. It's much important of question number 4. Then leave it the question number 4. You up to question number 3 you can write all the question and answers. Next we will see exercise 5.1. So in question number 5.1, question number 1 you cannot write. Question number आपको लिखना नहीं है. That we can start with question number 2. So question number 2, the shoppers who come to be departmental store are marked as man M, woman W, boy B or girl G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. Make a frequency distribution table using tally marks. Draw a bar graph to illustrate it. So first, with the help of this data, you can
मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टेबल फॉर टैली मार्क्स। आपको टैली मार्क्स का टेबल रेडी करना है। पहले इसमें देखना है कौन कौन पर्सन आ रहे हैं, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। सो इन फर्स्ट कॉलम kind of shoppers heading, man, woman, boy, girl. Second column tally marks, third column frequency. So in previous video I will already explain how to make a tally marks. So with the help of that you can write a tally marks and draw a bar graph, simple bar graph आपको draw करना है। सो फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स में आपको फ्रीक्वेंसी जो मिल रहा है उसकी थ्रू आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस में आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देख के रखना है डिफरेंस, और एक्स एक्सिस में आप रखेंगे डब्ल्यू, एम, बी और जी। ये 4 नंबर एक्स एक्सिस में रखेंगे, काइंड ऑफ शॉपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are, so यहाँ पे डेटा दिया हुआ weekly wages of workers in a factory में। Usually tally marks make frequency table with intervals as 800, 810, 810, 820 and so on. So with the help of this data, first you can write the lowest observations, highest observations and class interval. After that you can make a table of frequency table. So first in table you can write in first column class interval, second column now tally marks, third column frequency. Then question number 4, draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3 and answer the following questions. So with the help of this table, question number 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो टेबल रेडी किया है वो टेबल रख के आपको क्वेश्चन नंबर 4 में हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। सो इसके पहले मैंने हिस्टोग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है मैंने एक्सप्लेनेशंस किया है, वैसे थ्रू आपको इसमें हिस्टोग्राम करना है। बट आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो टेबल रेडी किया है उसके थ्रू आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। सो वाई एक्सिस में आप रखेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स एक्सिस में आप रखेंगे वीकली वेजेस। So with the help of this graph you can write all 3 questions. So question number 1, which group has the maximum number of workers? So आप टैली मार्क्स ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है मैक्सिमम नंबर फ्रीक्वेंसी किस में है वो आपको लिखना है। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर, 850 और उससे ज़्यादा कितने वर्कर्स अर्न कर रहे हैं वो सेकेंड क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, सो 850 और उससे नीचे कितने वर्कर्स अर्न कर रहे हैं ये आपको लिखना है। सो ये आप सब कुछ तभी लिख सकते हैं जब आप टेबल रेडी करेंगे तो you can draw a table, then only possible you can write all the question and answers. Next question number 5, the number of hours for which students of a particular class watched television during holidays is shown through the given graph. Answer the following. For how many hours did the maximum number of students watch TV? So first question पूछा हुआ है, so how many hours did the maximum number of students watch TV? So कितने hours maximum number of students TV watch कर रहे हैं? So यहाँ पे ग्राफ है, so उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसमें ज़्यादा है 32। सो 4 to 5 hours द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। सो इसमें आपको क्लास इंटरवल के थ्रू लिखना है 4 to 5, 5 to 6, इस तरह आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 hours, 4 hours से कम कितने स्टूडेंट्स टीवी वॉच कर रहे हैं?
सो आवर्स यहाँ पे है 4 आवर्स से कम। सो 4 आवर्स से कम मीन्स सो 4 और 4 आवर्स से कम। सो आपको आएगा 4, 8, 22, तीनों को प्लस करके आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। सो मोर देन 5 आवर्स से ज़्यादा। सो 5 आवर्स से ज़्यादा मतलब क्या आएगा आपको, 8 और 6 दोनों को प्लस करके लिखना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक्सरसाइज 5.1 समझ में आया होगा। सो आप इसको ग्राफ बुक में करना है आपको कंपलसरी।